Good morning everyone. So today we are going to discuss the summary of the new chapter, and the name of the chapter is the Taro's Reward. And in the next video we will discuss this chapter in detail, so let's start. There was a young woodcutter named Taro who lived with his parents on a lonely hillside, and he earned a very small amount of money, so this made him sad because he wanted to give a best life to his parents. One day it was very cold. His father said, "I wish I could have a cup of sake," and this made him Taro's sad because sake was very expensive. And in the next morning, the Taro woke up earlier than usual, and he went to the forest, and he kept on chopping the wood for a very long time. His mouth was dry and felt thirsty, but still he kept on chopping the wood. Suddenly, the sound of falling water somewhere nearby made Taro stop his work, because he had never seen or heard of rushing water nearby, and he was very thirsty, so he ran in the direction of sound, and he saw a small but very beautiful fountain there. And then he drank the liquid. But that was not water, that was sake, and he had pitcher with him, so he filled that pitcher with the sake and hurried home. The old man, delighted with the liquid, and just took one swallow, and this stopped his shivering, and he began to dance. He was very happy. That day, they had visitor from the village who was offered sake, and Taro told her the story of the magic waterfall. And after that, the story spread all over the village, and the next morning the village people reached the magic waterfall, and they become very angry when they tasted the liquid, because that was a cold water, that was not a sake. And so they thought that the Taro had cheated them, so they wanted to drown Taro. And Taro hid himself in the forest, and when the villagers had gone, and he reached the magic waterfall, and he again tasted that liquid, but it was just the fine same sake. It was very much clear that the magic waterfall gave sake only to Taro, not to the villagers, because he was a very thoughtful son. The story of Taro and the magic waterfall reached the emperor, and he rewarded the Taro with 20 pieces of gold. And then he named the most beautiful fountain of the city after Taro. And this was the encouragement to all the children, because he wanted to give the encouragement to all the children to obey their and honor their parents. चलिए, अब मैं आपको इस स्टोरी को हिंदी में समझाती हूँ कि तारो नाम का एक वुडकटर जो था, वो एक अपनी फैमिली के साथ जो था, अपने पेरेंट्स के साथ एक हिल साइड में रहता था। ठीक है, पर वो क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा कम पैसे जो था वो कमाता था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी होता था। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को जो था एक बहुत अच्छी जो है वो एक लाइफ देना चाहता था। तो एक बार क्या होता है कि बहुत ठंड पड़ रही होती है, तो उसके फादर कहते हैं कि काश मेरे पास, अगर मतलब हमारे पास सेक होता तो मैं पीता। सेक जो होती है एक जापानीज ड्रिंक होती है जो ठंड के टाइम पे पी जाती है, कि जो बॉडी के अंदर जो है क्या करती है, गर्मी ला देती है। तो इसको सुनकर जो था तारो और ज़्यादा अपसेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो सेक है, जो वो ड्रिंक थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा पैसे की वो आती थी, और उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो अपने फादर के लिए उस ड्रिंक को लेकर आ पाए। तो क्या होता है, एक दिन वो बहुत जल्दी जो है सुबह उठ जाता है, अपने यूजुअल टाइम से पहले वो उठ जाता है, और वो कहाँ चला जाता है, वो फॉरेस्ट चला जाता है, और वहाँ पे वो क्या करता है, लकड़ियों को चॉप करना, मतलब उनको काटना जो है वो शुरू कर देता है। उसका जो गला है वो बहुत ज़्यादा सूख जाता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पर फिर भी वो क्या करता है, अपना काम करता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको ना कहीं से बहुत अजीब सी, जैसे वाटर गिरने की जो आती है ना, जैसे फाउंटेन की जो
आवाज़ होती है पानी की, तो उसको आवाज़ कहीं सुनाई दे रही होती है। उसने आज से पहले कभी ये चीज़ जो है सुनी नहीं होती है, और उसको वैसे ही ठंड लग रही है, मतलब वैसे ही उसको जो है वो प्यास लग रही होती है। तो वो क्या करता है, उसी डायरेक्शन में, उस साउंड के डायरेक्शन में जो है उसको फॉलो करते करते वो एक छोटे से फाउंटेन के पास पहुंचता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो जब उसके पास पहुंचता है तो उसको प्यास तो लगी होती है, फिर वो क्या करता है, उस पानी को पीना शुरू करता है। तो जब जैसे ही वो उस पानी को पीना शुरू करता है, वो कहता है अरे ये तो पानी नहीं, ये तो सेक है, मतलब ये वही जापानीज ड्रिंक है जो उसके फादर पीना चाहते थे। तो वो क्या करता है, उसके पास पिक्चर, मतलब उसके पास एक घड़ा होता है, तो वो क्या करता है, उस घड़े को जो है उस सेक से भर लेता है। वो जल्दी से जल्दी जो है वो घर जो है चला जाता है। उसके बाद जो उसके फादर हैं उसको देख के जो है, उस सेक को देख के, उस ड्रिंक को देख के बहुत खुश होते हैं। वह जैसे ही वो उसका पहला घुट लेते हैं तो उनके सारी जो शिवरिंग, मतलब जो उनकी कपाहट, जो वो कांप रहे होते हैं, वो शिवरिंग जो है ख़त्म हो जाती है। वो खुशी के मारे जो है झूमने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। ये उनका तरीका होता है एक हैप्पीनेस को दिखाने का, ठीक है। जब वो डांस करते हैं उसके बाद क्या होता है कि उनके घर पे कोई विजिटर आए होते हैं, जैसे गेस्ट वगैरह आए होते हैं, तो वो तारो क्या करता है, उनको वो पूरी स्टोरी बताता है उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में। तो विलेज ऐसे करते करते पूरे गांव में जो है वो न्यूज़ फैल जाती है। और जब विलेजर्स क्या होते हैं, तारों के उठने से पहले ही वो क्या करते हैं, उस वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। जाकर पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर वो भी भरना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो टेस्ट करते हैं उसको, वो क्या देखते हैं कि अरे ये तो सिर्फ एक ठंडा पानी है, ये तो कोई ड्रिंक नहीं है जैसे तारों ने बोला था। तो उनको लगता है कि अच्छा, मतलब उसने हमें चीट करा है, उसने हमें धोखा दिया, उसने हमें ऐसे ही मूर्ख बनाया। तो वो प्लान करते हैं कि वो उसको नहीं छोड़ेंगे। जब तारों को ये बात पता चलती है तो वो क्या करता है, वो एक जंगल में जाके जो छिप जाता है और वेट कर रहा होता है कि कब वो जाए। और जैसे ही वो विलेजर्स वहाँ से चले जाते हैं तो वो जल्दी से उसी मैजिक वाटरफॉल के पास जाता है और फिर से उसका लिक्विड टेस्ट करता है। तो उसको क्या मिलता है, वो तो फिर से सेक ही था, वो तो कोई मैजिक, मतलब वो तो कोई वाटर था नहीं। मतलब इससे ये क्लियर होता है कि वो जो मैजिक वाटरफॉल था वो सिर्फ वो ड्रिंक जो है वो तारों को देता था, बाकी किसी विलेजर्स को नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल सन था। मतलब अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनका कहना मानता था। तो जब ये बात जो है वहाँ के राजा को, वहाँ के एम्परर को पता चलती है, मतलब उसकी स्टोरी के बारे में, तो वो उसको क्या करता है, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड जो है वो उसको इनाम में देता है। और उसके बाद क्या करता है, वो बहुत, मतलब एक वहाँ का बहुत सुंदर फाउंटेन होता है सिटी का, तो वो उसका नाम जो है तारों के नाम से ही रखता है। वो इसलिए ताकि बाकी बच्चों को भी इन सब चीज़ों की सीख मिले और वो भी ये चीज़ समझे कि हमें जो है अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी कभी भी हमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द स्टोरी इन डिटेल. Until then, goodbye and have a good day.